Hello students, today is computer class Boolean algebra part 3rd. In this video lecture we will discuss basically three topics: basic postulates of Boolean algebra and principles of duality, and then we will discuss basic theorems of Boolean algebra. These are the three topics we will cover in this video lecture, but first we will start with the basic postulates of Boolean. So what are the basic postulates? Here are four basic postulates of Boolean algebra. Like first, according to this law, first our A part is, if a variable's value is not equals to 0, then it will be what? X equals to 1. Why? Because it is a Boolean. Boolean means it will be either 0 or 1. यदि ये 0 होगा तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा. तो if it is not a 0, then it will be 1. Similarly, if it is not equal, x is not equals to 1, then x will be 0. No other values are allowed here. Okay, so this is the first rule, and this is very simple rule, because you all know that it is a Boolean. That means if it is not 0, it will be 1. If it is not 1, it will be 0. Okay, now second law is rule OR gate operation, or you can say logical addition, or law of zeros. इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एडिशन. जीरो बोल सकते हो, या आप इसको और गेट होता है, और ऑपरेटर होता है, तो आप इसको और भी बोल सकते हो. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इफ इट इज 0 प्लस 0, इट विल बी 0. इफ इट इज 1 प्लस 0, इट विल बी 1. इफ इट इज 0 प्लस 1, इट विल बी 1. इफ इट इज 1 प्लस 1, इट विल बी 1. Okay, here if any input is 1, the output will be 1. Similarly, third law is law of AND, or you can say once. It is also known as logical multiplication. In this law, 0 or and 0 will be 0, 0 and 1 will be 0, 1 and 0 will be 0, and 1 and 1 will be 1. So here only one condition will be 1, and here three conditions. Output will be 1, and only one condition for 0 output. Okay, next the third and final law in the of basic postulate is complementary law. What is complementary law? It is a complementary. Here if it is 0 bar, it will be 1, or if it is 1 bar, it will be 0. यहां पे क्या करता है? बार इसको इन्वर्ट करता है. नैंड, ये एक्चुअली क्या है? नॉट गेट है. ये आपका एंड गेट है, और ये आपका और गेट है. ठीक है, और ये बेसिक है, क्योंकि यदि कोई 0 नहीं होगा तो 1. ये बताता है बेसिक चीजें कि कोई भी जो बूलियन है उसमें सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है किसी वेरिएबल की, या तो 0 या फिर 1. तो ये पहला लॉ हो गया. दूसरा लॉ आपका और गेट का है. और गेट है, आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए. और गेट का तो टेबल ही लिखा है हमने. 0 और 0 विल बी 0, 1 प्लस 0 विल बी 1, 0 प्लस 1 विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 1, एंड इट इज द एंड गेट. So it is also known as law of AND. 0 and 0 will be 0, 0 and 1 will be 0, 1 and 0 will be 0, 1 and 1 only will be 1. And this is the complementary law, or you can say it is a NOT gate. Invert of 0 will be 1 and invert of 1 will be 0. So these are the four basic postulates which you have to keep in mind.
while doing exercise of this chapter. Now we will move on principle of duality. थर्ड लॉ, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या करता है? इस लॉ में क्या होता है? ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, रिवर्स होता है। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के क्या मतलब है? इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? कोई भी जो बूलियन एक्सप्रेशन है, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है, आप उसको एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कोई भी एक एक्सप्रेशन है उसको आप दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसको ड्यूअलिटी किसी भी एक्सप्रेशन का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? जितने भी एंड हैं उनको हम क्या कर देते हैं? और कर देते हैं। जितने भी और हैं उनको एंड से रिप्लेस कर देते हैं, और 0 को 1 से और 1 को 0 से। ये रूल है जिसको आपको करना पड़ेगा ड्यूअल निकालने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहला क्या करते हैं? इंटरचेंज एंड विथ और। एंड को और से चेंज कर दो, इंटरचेंज और विथ एंड। जितने एंड है उनको और से, और आर है उनको एंड से चेंज कर दो। और थर्ड क्या करता है? इंटरचेंज 0 एंड 1। 0 1 को आपस में इंटरचेंज कर दो। यदि 0 है तो उसको 1 कर दो, 1 होगा तो उसको 0 कर देते हैं। तो कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का ड्यूअल? उसके लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन जो हमारा ये है, इसको लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या है? ये एक्सप्रेशन है आपका 0 और 0 इक्वल्स टू 1, सॉरी 0 और 0 इक्वल्स टू 0। तो हमने पहला क्या यहां पे पहली कंडीशन ड्यूअल निकालने के क्या कहा है कि एंड को और से चेंज कर दो। तो जितना एंड है यहां पे क्या है? एंड नहीं है, और है। और को एंड से चेंज कर देते हैं, तो और है उसको चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये पहले में ये जो और ऑपरेटर है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? एंड में। और ये जो 0 है इनको हम क्या कर देंगे? 1 से चेंज कर देंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 × 1 इक्वल्स टू 1। ये आपका एक क्या बन के आया? नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन बना, जो कि आप देखोगे यहां पे क्या है? ये वाला रूल है आपका। ठीक है, जो एंड का सबसे लास्ट है वो इसका फर्स्ट का क्या है? डुअल है। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के क्या है? डुअल है। ठीक है, इसी तरह से आप यदि आप सेकेंड का निकालोगे तो क्या है? यहां पे सेकेंड को करते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ क्या कहता है? 1 + 0 इक्वल्स टू 1। 1 + 0 इक्वल्स टू 1। अब यहां पे हम जितने भी 1 है उनको 0 कर देंगे। तो ये पहला 1 है हमारा, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे? 0 से। यहां पे और ऑपरेटर है तो और को हम एंड से कर देंगे। यहां पे 0 है तो इसको हम क्या कर देंगे? 1 से। और हमारा ये भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये देखो आपका ये एक्सप्रेशन कौन सा है? 1 × 0 ये वाला है आपका, और ये वाला क्या था? ये वाला था आपका। यानी ये और ये एक दूसरे के क्या है? डुअल है। ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के डुअल है। इसी तरह आप इसका भी करना और इसी तरह से आप इसका भी करना। आप देखोगे कि ये क्या है? एक दूसरे से कंप्लीमेंट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको करोगे। यहां पे आप करोगे कंप्लीमेंट्री के लिए, तो आपका क्या एक्सप्रेशन है? 0 कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 1। यहां पे हमें कंप्लीमेंट को नहीं चेंज करना है, हम सिर्फ 0 और 1 को चेंज करेंगे। तो इसको यदि आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड लॉ, सेकेंड इसी का रूल है, जो कि ये एक दूसरे के क्या है? डुअल है। हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के डुअल है। और ये यदि ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स, मतलब सेम होगा उसी का। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। इस एक साइड से अब स्टार्ट करोगे, जितने 0 हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दोगे, जितने 1 है उनको 0 से, जितने एंड है उनको और से, और कोई भी एक्सप्रेशन में हम चेंज नहीं करेंगे।
जैसा कि यहाँ पे हमने क्या कंप्लीमेंट था तो कंप्लीमेंट रहने दिया, सिर्फ 0 को 1 कर दिया, यहाँ पे 1 था इसका हमने 0 कर दिया, तो आपने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डुअल हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ओके, प्लीज नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक जो लॉज हैं बुलियन अलजेब्रा के, उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब होता है जो पहला आपका लॉ है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो ये क्या है, 0 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, या फिर आपका क्या है x, सॉरी 0 एंड x इक्वल्स टू 0, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू x। ठीक है, ये आपके लॉज हैं, ये पहला आपका लॉ है, 0 एंड 1 का लॉ है। 0 और 1 के लॉ में इसमें क्या है, इसको आप प्रूफ करना है आपको। यदि मान लो प्रूफ करने को आएगा तो आप इसको, सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को प्रूफ करने का, आप उसका क्या बना दो, ट्रूथ टेबल बनाओ और उसको प्रूफ कर दो। सबसे इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे है ये। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको प्रूफ करो इस लॉ को, और कुछ भी नहीं कहा जाता है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, बुलियन इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे और उसको प्रूफ कर दोगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। यहां पे सबसे पहले आपका एक इनपुट ले लेंगे हम। इनपुट में क्या क्या है, 0 और x है, तो 0 और हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे आउटपुट हो जाएगा। अब ये 0 है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी। ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू या तो आप 0 ले सकते हो या फिर 1 ले सकते हो। तो ये 0 इसको फिक्स ही रहेगा, 0 या 1, तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। यहां पे आपको क्या निकालना है, यहां पे आपको और निकालना है, इसका और निकालोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 और x, यानी यहां पे आपको और ऑपरेटर लगा के इसका रिजल्ट निकालना है। तो 0 और 0 का जब रिजल्ट होता है तो क्या होता है, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही आएगा। 0 प्लस 1 आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, जो आपका फाइनल रिजल्ट ये था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आप इसको कंपेयर करोगे, यदि राइट हैंड साइड से क्या है, x, तो यदि आप देखोगे ये दोनों एंट्रीज देखोगे इस टेबल में, तो दोनों एंट्री क्या है, आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। दैट मीन्स क्या कर सकते हो आप, 0 और x इक्वल्स टू x, इट इज क्या है, प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ होगा कि नहीं। From the above table we can say that though these entries are same, so x or 0 और x equals to x प्रूव्ड हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। चलिए इसको करते हैं, आप इन दोनों का करके देखिएगा। यहां पे इसकी वैल्यू को फिर से हम क्या करते हैं, अब ये है, अब इसका हम लोग और की जगह पे क्या ले लेते हैं, एंड ले लेते हैं। ठीक है, हमें एंड निकालना है, तो 1 एंड x, ओके, या 1 डॉट x भी आप बोल सकते हो। तो 1 ये 0 है, सॉरी एक 1 भी ले लेते हैं, यदि मान लो वैल्यू 1 हो जाएगी इनपुट इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, हमने एक ही में कर दिया, आप अलग अलग लेके कर सकते हो। आप इसको और इसको एक साथ ले लेना और इन दोनों तीनों को एक साथ ले लेना। ठीक है, तो अब आपका क्या है, आप इसको और इसको एक साथ ले रहे हो, तीन चीजों को, फिर इसको और इसको एक साथ ले रहे हो। तो यहां पे हमें करना है x के साथ लेना है, तो 1 की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू क्या है, ये है। तो 0, 1 और 0 का जब आप एंड निकालोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। 1 एंड 1 का रिजल्ट क्या आएगा, आपको 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 और 1 दोनों क्या आ रहा है, सेम है कि नहीं। ये पूरी कॉलम इस पूरे कॉलम के सेम है कि नहीं है। तो इसका मतलब भी ये वाला जो रूल है 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से हम और दूसरे जो दो लॉ है उसको भी प्रूफ कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब बात करेंगे हम इंडेम्पोटेंट लॉ की। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है,
इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये आपका लॉ है, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इसका सिंपल फिर से हम वही करेंगे, इनपुट आउटपुट लेके ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सिंपलेस्ट वे है बाकी। तो x और ये क्या हो जाएगा, x, दो इनपुट ले लिया हमने, तो ये आउटपुट हो गया। हमें यहाँ पे आउटपुट क्या निकालना है, x एंड x करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 तो ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, तो चेंज करेंगे नहीं। x और 1 यानी 0 प्लस 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी 1। अब इस ये दोनों एंट्री क्या है, सेम टू सेम क्या है, x के बराबर है, तो इससे हमने प्रूफ कर दिया कि ये वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है, प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली आप यदि x डॉट x का करोगे तो क्या हो जाएगा, x डॉट x 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि ये एंट्री और ये एंट्री क्या है, सेम है, तो आप इसको भी कर सकते हो कि ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपका क्या है, एवोल्यूशन लॉ है, ये क्या कहता है, x डबल बार इक्वल्स टू x, यानी x पे आप डबल बार निकालोगे, उसका कंप्लीमेंट करोगे, डबल कंप्लीमेंट, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x के सेम आ जाएगी। ओके, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आप ले रहे हो, x की वैल्यू आप 0 या 1 ले रहे हो, तो यहां पे एक और निकालते हैं हम, कंप्लीमेंट निकालेंगे इसका। यहां पे एक्चुअली डबल कंप्लीमेंट मतलब क्या है, पहले x पे एक कंप्लीमेंट फिर दूसरा उसका कंप्लीमेंट, तो x की वैल्यू निकालते हैं, इसका कंप्लीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 का कंप्लीमेंट 0। अब इसका x डबल कंप्लीमेंट निकालते हैं, यानी x कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट, यानी इसका ये फिर से कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो ये 1 था, 1 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, और 0 का कंप्लीमेंट 1। तो आप देखोगे कि ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, तो आप इससे प्रूव कर सकते हो x डबल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू x। ओके, सो this one this all have completed and complementary law। अभी इसको भी कर लेते हैं x के साथ लेके। ट्रूथ टेबल से हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। ट्रूथ टेबल क्या होता है, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है सबको शो करता है। तो यहां पे क्या है, x, ओके, x प्लस x डैश इक्वल्स टू 1, और क्या है x टू 0। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, x लेते हैं और x डैश चीजें लेंगे, ठीक है। तो x लोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 और 1 दो चीजें पॉसिबल है x की, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 का कंप्लीमेंट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का कंप्लीमेंट करोगे तो 0। अब ये निकालो x प्लस x डैश, यानी इसका और करेंगे, इसका और इन दोनों का, यही तो है ये x और x, तो इसका यदि आप और करोगे तो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये हमेशा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। कोई भी कंडीशन ले रहे हो, x की कोई भी वैल्यू ले रहे हो, या चाहे 0 लो चाहे 1 लो, ये हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमेशा ट्रू ही होगा। x और x डैश होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। सिमिलरली आप इसको भी करो, x डैश, ओके, यहां पे x की वैल्यू 0 या 1 दो वैल्यू पॉसिबल है, तो 0 का होगा तो उसका कंप्लीमेंट होगा 1 हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट होगा तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप एंड निकाल दो, तो 0 एंड 1 विल बी 0, 1 एंड 0 विल बी 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी हमेशा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है और वेरीफाई हो गया। तो आपका ये लॉ भी क्या हो गया, ट्रूथ टेबल के थ्रू वेरीफाई हो गया। कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या कर सकते हो आप, इसी तरह से सिमिलरली वेरीफाई कर सकते हो। कैसे इसको करेंगे, चलिए करके देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, आप इसको लिख के इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, उससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। आप एक बार करके देखना, इसी तरह से लॉ बनाइएगा। सबसे पहले x की कॉलम होगी, फिर y की होगी। अब यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर 1, फिर 0, सॉरी ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट में ये 1 1 होगा। अब इसके लिए आप इधर की वैल्यू निकालिएगा, x प्लस y की वैल्यू निकालिएगा, और फिर इसी तरह से y प्लस x की वैल्यू निकालिएगा, और आप देखोगे कि दोनों एंट्री क्या है, सेम है। कैसे, चलिए करके देखते हैं। 0 प्लस 0 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 0, 0 1
1 एंड 1। अब आप इसको करो y प्लस एक्स को करोगे तो 0 और 0 क्या होगा 0, 0 और 1 क्या होगा 1, 1 और 0 क्या होगा 1 और 1 और 1 क्या होगा 1। तो ये दोनों लाइनें क्या है सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है। ये आपने प्रूफ कर दिया। इसी तरह से आप इसका भी करना, नेक्स्ट का भी करना। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, इसको भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हो। Thank you, student. This was all about for today's class. Remaining topic we will discuss in next.